وزارت قانون نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا۔ نوٹیفیکیشن جمع کرانے میں تاخیر اور عدالت نے ریمارکس کیے اگر آج نوٹیفیکیشن نہ آیا ہوتا تو دونوں ملزمان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر کے پیش کرنے کا حکم دیں گے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ اس کیس میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ نصر بھی آئے گا۔ کیس کی اگلی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو جج ابوالحسنات نے کہا کہ جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو ہم پروٹیکشن آرڈر کروائیں گے۔ وکیل صفائی سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ عدالت نے 23 نومبر کو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی پروٹیکشن کا آرڈر کیا، پھر خود ہی نظر ثانی بھی کر دی، جس پر جج نے جواب دیا کہ آپ 28 نومبر کا آرڈر پڑھیں، آپ کی تمام باتوں کا جواب مل جائے گا۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش کرنے پر اب بھی سوالیہ نشان ہے، جس پر جج نے جواب دیا کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا نظر بھی آئے گا۔ اگر نوٹیفیکیشن نہ آیا تو میں ملزمان کو عدالت پیش کرنے کا نوٹس جاری کروں گا۔ سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ کیا گیا، جس دوران وزارت قانون نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع کرا دیا۔ وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو اسپیشل پراسیکیوٹر ایف آئی اے نے آج ہی اڈیالہ جیل میں سماعت مقرر کرنے کی استدعا کی، تاہم عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کل کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اور اب بات کریں گے آڈیو لیک کے حوالے سے تو علیمہ خان نے آڈیو لیک پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نکسن کو اس لیے نااہل کیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگوں کی پرائیویسی میں گھسے تھے۔ پہلے انہوں نے چار دیواری کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی، انہوں نے چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو جاری کر دی۔ میرے اور بشرا بیوی کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے، ان سب کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ کی فکر کریں سارے کل آپ کے گھر کی بھی باتیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دیکھیں جب گھروں تک پہنچ جائے نا، امریکہ میں ایک انہوں نے پریزیڈنٹ نکسن کو نااہل کر دیا تھا کہ کسی کی پریویسی کے اندر آپ نہیں جا سکتے۔ تو جب ہماری شرم اور حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے، پہلے انہوں نے چار دیوالی کے اندر جا کر عورتوں کی بے حرمتی کی، اب عورتوں کو گھسیٹ کے باہر لے آئیں گے، پھر تماشا بنائیں گے۔ پہلے چیف جسٹس کی ساس کی نکال دی آڈیو۔ اختلاف ہو یا نہ ہو، عمران خان جیل میں ہیں اور سارے ان کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی اور خواب ارمانکا کی آپ کو بتائیں طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے جو درخواست تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی ہے۔ درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی تو شہری عدالت آ سکتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے جو یہاں آ گئے، آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہیں، کس قانون کے تحت آپ نے یہ درخواست دائر کی، یہ فریقین کے درمیان گھریلو جھگڑا ہے۔ عدالت سوشل میڈیا کی خبروں پر انحصار نہیں کر سکتی، یہ مفاد عامہ کی درخواست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 2024 سے متعلق تمام ابہام دور کر دیے۔ ای سی پی نے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست بھی جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں کے ساتھ ایوان زرعی کے اراکین کی مجموعی تعداد 366 ہو گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات فروری میں کروانے سے متعلق اہم اقدام، ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں تیار، الیکشن کمیشن نے حتمی فہرست جاری کر دی۔ ای سی پی کے مطابق قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی، جس میں 10 نشستیں اقلیتوں جبکہ 60 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ یوں آئندہ ایوان زرعی کی مجموعی سیٹوں کی تعداد 342 کے بجائے 336 ہوگی۔ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب میں 141 نشستیں ہیں، جن میں سے 32 خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی کل 75 نشستیں مقرر ہیں، جن میں سے 61 جنرل اور 14 خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 45 جنرل نشستیں اور خواتین کی 10 مخصوص نشستیں ہیں۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی کل 20 نشستیں ہیں، جن میں 16 جنرل اور 4 خواتین کی مخصوص نشستیں شامل ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت میں قومی اسمبلی کی 3 جنرل نشستیں ہیں، جن میں خواتین کے لیے کوئی مخصوص نشست نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297 مقرر کی گئی۔ سندھ اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 130، کے پی کے اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 115 مقرر کی گئی۔ بلوچستان اسمبلی میں 51 جنرل نشستیں ہوں گی۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستیں 593 جبکہ مجموعی طور پر 749 نشستیں ہوں گی۔
पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले दरख्वास्त दे रखी है वो नई हल्का बंदियों के बाद नए हल्का नंबर के लिए दरख्वास्त अरसाल करें। नई दरख्वास्त के साथ कौमी असम्बली के लिए 40,000 और सूबाई असम्बली के लिए 30,000 रुपये फीस मुकर्रर। दरख्वास्त सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से भेजने की हिदायत दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मीटिंग्स आपको बताएं कि 2 से 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी और पार्टी टिकट्स का फैसला कायद और सदर नून लीग सीनियर रहनुमाओं के साथ मशावरत के बाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया है और मीटिंग्स 2 से 19 दिसंबर तक जारी रहेंगी। पार्टी टिकट्स का फैसला कायद और सदर नून लीग सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN महविश सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। महविश, बताइएगा मीटिंग्स की जाएंगी और क्या क्या प्लान है मीटिंग्स का? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग पहली मीटिंग जो है वो 2 दिसंबर से को शुरू होगी और 19 दिसंबर तक ये मीटिंग जो है जारी रहेंगी। पार्लिमानी बोर्ड की पहली मीटिंग कल सरगोदा डिवीजन से होगी और 3 दिसंबर को बरोज इतवार रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो है वो मुनक़िद होंगे और 6 दिसंबर बरोज बुध KPK के हज़ारा और मालाकंड डिवीजन के उम्मीदवारों से इंटरव्यू होंगे। इसके अलावा दिसंबर 16 बरोज हफ्ता सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुनक़िद होंगे और 18 दिसंबर बरोज पीर मुख्तलिफ नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुनक़िद होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महविश सुहेल। पेट्रोल की कीमतें बरकरार, डीजल सस्ता, LPG महंगी कर दी गई। 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 3,007 रुपये महंगा हो गया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा या कमी नहीं की गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वफाकी हुकूमत ने डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी कर दी। LPG महंगी कर दी गई। डीजल 7, मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे सस्ता। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा या कमी नहीं की गई। कीमतों में कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 201 रुपए 16 पैसे, जबकि लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे सस्ता होने के बाद नई कीमत 175 रुपए 93 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे पर बरकरार रहेगी। शहरियों ने पेट्रोल भी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। डीजल पे कम किया तो पेट्रोल पे भी कम होनी चाहिए। पेट्रोल भी इनको कम करना चाहिए। पेट्रोल काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हमें जो है ना पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए इनको। पेट्रोल ऊपर लेके गए हैं ना, इसी रफ्तार से इनको चाहिए था कि पेट्रोल कम लेके आए। अब डीजल सस्ता कर दिया है, पेट्रोल इन्होंने उधर ही रखा हुआ। इधर फिर सरप्राइज ही किया है। पेट्रोल की खपत ज़्यादा, आपको चाहिए कि पेट्रोल पे ज़्यादा फोकस करें। पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ देनी चाहिए थी। सर्दी बढ़ते ही गैस के मुतबादिल LPG की कीमतें बढ़ा दी गयी। ओगरा ने LPG में 3 रुपए 82 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। LPG की नई कीमत 254 रुपए 86 पैसे फी किलोग्राम तक पहुंच गई। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 45 रुपए महंगा। सिलेंडर की नई कीमत 3,007 रुपए से तजावुज कर गई। चीफ जस्टिस को हुकूमत की जानिब से दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम फैसला कर लिया। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत भी अरसाल कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से केसेस तेजी से निपटाए जाने लगे तो आम आदमी की भी होने लगी सुनवाई, मिलने लगा रिलीफ। चीफ जस्टिस का एक और बड़ा इकदाम, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला कर लिया। नीलामी से हासिल रकम भी अवाम के लिए खर्च करने का कह दिया। 2020 में खरीदी गई मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत अरसाल कर दिया गया। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना नामुनासिब भी करार दिया है। फैसलाबाद में डिजकोट के इलाके 271 रेबे भड़ोले वाला में शोहर ने बीवी और बेटियों के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली।
मोहम्मद ताहिर नामी शख्स ने 3 बेटियों और बीवी को जहरीली गोलियां खिलाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर, बताइएगा। शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना डिजकोट के इलाका 271 रेबे भड़ोलियाँ वाला में, जहाँ पर मोहम्मद ताहिर नामी शख्स ने अपनी 3 जवान साला बेटियों और बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद खुद भी गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद ताहिर ने अपनी बीवी और तीनों बेटियों को जो है जहरीली गोलियां देकर कत्ल किया। उसके बाद जो है खुद भी मस्जिद में गया और जाकर वहाँ पे इमाम मस्जिद को अपना वसीयतनामा दिया। वसीयतनामा में जो उसने जिक्र किया है कि वो मकरूज है, उसने कुछ लोगों के पैसे देने हैं और इस हवाले से वो मुश्किलात से 2-4 तो यही वजह बनी है। उसमें वसीयतनामे के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। पुलिस के मुताबिक जो है मोहम्मद ताहिर ने अपनी बीवी और बेटियों को जहरीली गोलियां देने के बाद जो है सर पर हथौड़ी के वार करके मौत के घाट उतारा है। फोरेंसिक टीम जो है इस वक्त वो घर के अंदर मौजूद है। तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो भी मौका पर पहुंच रहे हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी, खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मेंबर्स की तकर्री कर दी है। कामरान अकबर, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है। तीनों साबिक क्रिकेटर्स अपनी जिम्मेदारियों का फौरी तौर पर आगाज कर देंगे। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN आकिब कुरैशी से। जी आकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के कंसल्टेंट की तकरीरियां कर दी हैं और इन 3 कंसल्टेंट में साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार अंजुम शामिल हैं। ये तीनों जो हैं वहाब रियाज के कंसल्टेंट के तौर पर अब काम करेंगे और इन तीनों की पहली असाइनमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज होगी, जिसके लिए ये स्क्वाड का ऐलान करेंगे वहाब रियाज की सरबराही में। अच्छा आकिब, ये बताइएगा कि इन तमाम कंसल्टेंट मेंबर्स की जिम्मेदारी क्या होगी टीम के लिए? देखें, वहाब रियाज जो है इनके सरबराह होंगे। उनकी सरबराही में जो है ये तीनों मेंबर जो है अपनी इनपुट देंगे वहाब रियाज को, चीफ सेलेक्टर को। पहली असाइनमेंट जो इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज है, उसके लिए स्क्वाड को तश्कील देना है। अभी जो टीम है हमारी कौमी क्रिकेट टीम, वो टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ताहम जो T20 के प्लेयर्स हैं उसमें ज्यादा चांसेस के जो उसके जो मेन टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें उनकी शमूलियत इख्तियार की जाए। ये तीनों जो हैं कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार अंजुम वसी तजर्बा रखते हैं क्रिकेट के हवाले से और तीनों जो हैं 2009 में जो हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे यूनुस खान की कप्तानी में, तीनों उस स्क्वाड के मेंबर्स थे और तीनों जो है वो इंग्लैंड में फातिहा कप्तान के अंदर जो है वो जीत चुके हैं T20 वर्ल्ड कप। तो अब इन तीनों को जो है मॉडर्न डे क्रिकेट का भी पता है, कहा यही जाता है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के आदी हैं और इंटरनेशनल सर्किट में भी इनका काफी तजर्बा है, डोमेस्टिक में भी काफी तजर्बा है। तो अब ये तीनों अपने मशवरा देंगे वहाब रियाज को और 4 मेंबर्स पे अब जो सिलेक्शन कमेटी बन गई है। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए आकिब।